Good morning, all. Am I audible? Okay. So today I will tell you that how you can your project, how you can work on your project using Google Colab, and there will be only 1 day task. Okay, they will not take much time. 1 day will be for execution of your project, and 1 day for writing the report. Okay, many of you are worried about that how that can be done, because I got the feedback from some of your batchmates. They are searching here and there that how this particular project will be done. They are asking from others that if you have done, then please share with me or tell me how that will be done. So I'll take a quick demonstration. That will also be the part of hands-on session, that whatever you have learned, that how that will be implemented using Google Colab. So I'm sharing my screen. I'll also share the YouTube link of the series. He has demonstrated a complete project. So first of all, what you need to do, you need to have a data set with you. So I have a small data set that I have shown you in my research paper also, that I have this small data set. This one, this contain train, and this is the data set. This contains train and valid, train data, train folder and valid folder. So train will have certain classes. So these are 10 classes. Okay, in 10 classes we have different kind of images. So test training के लिए हमारे पास ये images हैं. These are I have reduced the data set. Original data set was containing approximately 1500 images. So I have what I've done, I've reduced these images. In each folder I have placed 200 images. Okay, so this is my dataset folder. This contains two subfolders. One is training dataset and validation dataset. Training dataset and validation dataset both will have 10 different folders. तो जितने folders होंगे उनको हम कहते हैं classes. So 10 different classes are there for tomato leaves. ठीक है, ऐसे ही आपके जितने भी images हैं वो कितने n number of classes में या n number of folders में divided होंगी. जैसे अगर आपके डिजिट का डाटा सेट है तो डिजिट की अलग अलग फोल्डर होंगे. 0 के डिजिट्स की इमेजेस होंगी, 1 डिजिट की इमेजेस होंगी. कोई अगर फ्लावर का है तो रोज फ्लावर के अलग इमेजेस होंगे, लिली फ्लावर के अलग फोल्डर होगा. Okay, so once you have downloaded the dataset, for those link is already available in your project based assessment, so you can go to that directly link and download that dataset. किसी कोई प्रॉब्लम आए बीच में कभी करने में तो you can give me your feedback by tomorrow. ठीक है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं कि अगर उस प्रोजेक्ट को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. ठीक है, पहले ट्राई करना. सब डाटा सेट ऐसे हैं जो इस पे काम हो सकता है इजीली. फिर भी अगर किसी को क्रिटिकल इशू आ रहा है कि तो अपना प्रोजेक्ट, अगर उसके माइंड में कोई दूसरा आइडिया है, बट प्रोजेक्ट वही होना चाहिए एमएल बेस्ड, एंड दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर अदर्स इज डूइंग. So you have to just upload this dataset first on Google Drive. So this is my Google Drive. I've created a new account. So on this Google Drive, I have just uploaded this complete folder. This is my dataset. It will contain the same two folders, train and valid. Each folder will also have 10 different classes. So ये पहले आपको अपनी Google Drive पे अपलोड कर देना है. ठीक है, जो भी डाटा सेट आपने डाउनलोड किया. ठीक है, उसको थोड़ा सा, जो भी डाटा सेट आपके पास होंगे दैट विल नॉट बी सो बिग. अगर किसी का डाटा सेट 500 MB या 600 MB या 1 GB से ज़्यादा हो रहा है, देन लेट मी नो. ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फिर उसको देखते हैं कि उसको कितना डाटा रिड्यूस करके अपलोड कर सकते हैं. देन व्हाट यू नीड टू डू,
अब आपके पास आपको गूगल कोलैब स्टार्ट करना है. So it's just go to Google, search for Google Colab. Many of you have worked on that, so uh, those are familiar with this particular platform. But many of you may be there in this particular group who have not worked in Google Colab. So this particular session is important for those. Okay, so since I am having another account, so I need to jump to that particular one where I uploaded this drive is on my other email ID. So I'll just connect it with that particular one. So I'm creating a new notebook. Okay, now I need to connect this notebook with my Google Drive. Data set मुझे यहाँ से connect करना होगा ना, जहाँ से मुझे data set pick करना है. तो I'll go to this folder, files वाले पे जाऊँगा, and I need to click here. ये drive का symbol आ रहा है, Mount Drive. So I'll get a code here. ठीक है, तो मुझे अपने इस अकाउंट से एक टोकन मिलेगा. I need to put that token. So now you can see drive is displayed here. Okay, अब आपको फोल्डर भी दिखेगा यहाँ पे माई ड्राइव के अंदर. you'll get this data set के अंदर आपको इधर, तो आपको जो पाथ देना है ये देना. ठीक है, नाउ कोड क्या क्या रन करना है. तो सेम जो जो मेरा ये प्रोजेक्ट था, that was identify the leaf plant disease using tomato leaves. तो उसका जो ये कोड है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. शेयर दिस लिंक. ये गिटहब है रिपोजिटरी, किसने शेयर कर रखी है, इसने कृष्णा नायक ने. यू कैन फाइंड इट इन दिस. ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. ओके, आई विल डायरेक्टली शेयर दिस link to you. I'll also share the link of this video. Many of you have gone through with this particular tutorial, क्योंकि जो सबसे फेमस ट्यूटोरियल है ये CNN के लिए का, डीप लर्निंग के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, देन this is this complete notebook. Python code है प्रोजेक्ट का. So you need not to run this particular first cell. ये केवल GPU के कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए है. That is not needed. वीडियो न्यूज़ नहीं बता रखा है कि जस्ट इफ यू वांट टू चेक कि तुम्हारे CPU GPU की क्या कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा GPU अभी रन कर रहा है करंट में आपके. इस पे रन करने से पहले अपना ये चेंज कर लेना रन टाइम. ओके, बाय डिफॉल्ट दैट विल बी CPU, बट आपको फास्ट करने के लिए आपको GPU कम से कम सेटिंग कर लेना इसकी. तो गो टू रन टाइम, गो टू चेंज रन टाइम, एंड देन नन से GPU सेलेक्ट करके सेव. ये स्टार्टिंग में ही करना है, बीच में करोगे तो पहला वाला जो कोड रन करा होगा वो सब बेकार हो जाएगा. आपको फिर से रन करना होगा. देखो अभी मेरा ड्राइव माउंट हो हट गया. ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहले रन टाइम चेंज कर लो अपना. ओके, देन नो नीड टू रन दिस कोड, जस्ट रन दिस वन. सो ये आपकी सारे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में चाहिए होगा. सो आई विल कॉपी दिस कोड और पेस्ट इट हियर.
रन करने के लिए इस बटन पे आपको क्लिक करना है, तो ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सेल ऐड करने के लिए कि नया कोडिंग स्लेब आ जाए, नया कोडिंग बॉक्स आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यू गेट न्यू कोडिंग बुक्स। डिलीट करने के लिए यहाँ से हटा सकते हो। देन नेक्स्ट वन, हम एक इमेज साइज दे रहे हैं कि जो हमारी इमेज का साइज होगा वो 224, 224 का होगा। तो हमें अपनी इमेज को इस साइज में कन्वर्ट करनी होगी, जो भी इमेज सेंड होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको अपना पाथ सेट करना होगा, जहाँ पे आपकी टेस्टिंग और वैलिडेशन इमेजेस हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट अभी इसने ये दे रखा है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। कैसे करेंगे? आप अपने फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ट्रेन का पाथ आपको लेना है, तो यहाँ पे जाओ, कॉपी पाथ, ठीक है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। यू आर सेइंग दैट योर कंटेंट ट्रेनिंग डाटा सेट आपका इस जगह पड़ा हुआ है। सिमिलरली यू विल टेक दिस, यू विल पेस्ट इट हियर, इसको रन कर देना है। तो अब आपके पास इसमें आपका इमेजेस, ट्रेनिंग इमेजेस का पाथ आ गया, इसमें आपका इमेजेस का, वैलिडेशन इमेजेस का पाथ आ गया। डन? इतना समझ में आ रहा है सबको अभी तक? कोई दिक्कत? एनीवन? Are you getting this? Okay. So now this is, I'll tell you what is that. So in this next coding slab, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी अवेलेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा होगा कहीं एप्लीकेशन, ये देखो मैंने दिखाया था ना कल लास्ट क्लास में कि कैरास के अपने कुछ ऑलरेडी अवेलेबल मॉडल्स हैं। तो इंसेप्शन v3 इज वन ऑफ देम। तो हमने इंसेप्शन v3 को इंपोर्ट कराया, तो अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि जो वेट्स लेने हैं वो इमेजनेट, एक मॉडल है इमेजनेट भी, इमेजनेट डाटा सेट पे जो मॉडल ट्रैक किया था वहाँ से वेट्स लेने हैं, नए वेट्स नहीं यूज़ करने। और जो लास्ट लेयर है उसको एमिट करना, उसको नहीं लेना, बाकी सारी लेयर लेनी। इफ यू सी दिस, यहाँ पे आओगे तो ये सारी लेयर्स हैं उस मॉडल में, ठीक है। इनपुट लेयर कितने, देयर आर सो मेनी लेयर्स। ये सबसे वन ऑफ द हैवीएस्ट मॉडल है लेयर्स के मामले में। अगर आप देखो, देयर आर सो मेनी लेयर्स, इस मॉडल में बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में हमें दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा है ना कि ये सारे लेयर्स हैं, कौन 41, 45, 40, 44, ठीक है, ये सारी लेयर्स है। तो हम लास्ट वाले लेयर को नहीं लेंगे, जो ओरिजिनल मॉडल की लास्ट वाली लेयर है, हम विल नॉट टेक दैट, क्योंकि लास्ट वाली लेयर हमेशा क्लासिफिकेशन का बताती है कितनी क्लास क्लासिफिकेशन करना है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमें 10 क्लास क्लासिफिकेशन करना है। तो जो इसमें अगर 15 लिखी है, 100 लिखे, 1000, वैसे इसमें 1000 लिखी है, क्योंकि ये इमेजिनेट डाटा सेट पर ट्रेंड हुआ मॉडल है। So that was containing 1000 classification. So we are removing that 1000 classification. तो कैसे करते हैं? Including top is equals to 4. Means we are not including last one. ठीक है? So we have to run this particular line. इसको execute करो। इस मॉडल का नाम हमने कर दिया Inception. So it is downloading that model. ठीक है, डन, स्टेप कंप्लीटेड। तो आपका मॉडल अब डाउनलोड हो गया, वेट सारे आपके डाउनलोड हो गए। देयर आर सो मेनी वेट्स नाउ। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेन नहीं करना अपने मॉडल को। अगर तुम इसे ट्रेन, अगर जस्ट अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो इसका मतलब इस पूरे मॉडल को ट्रेन करेगा फिर से। सो अगर मैं यहाँ से फॉल्स ट्रू करके रन कर दूं इसको, तो हमारा जो भी पहले की ट्रेनिंग हो रखी है इस पर्टिकुलर मॉडल पे, दैट विल नॉट बी यूजफुल। ये फिर से पूरा ट्रेन करेगा उसको, एंड दैट टेक, इस मशीन पे जो हम यूज कर रहे हैं, दैट विल टेक फ्यू डेज, इवन मोर, ठीक है। तो हम इसे फॉल्स करना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब हम सारी लेयर्स को, इंसेप्शन की सारी लेयर को ट्रेनेबल उसको फॉल्स करने, वी आर नॉट ट्रेनिंग दैट, वी आर यूजिंग ऑलरेडी ट्रेन्ड वेट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो अब एकदम से एग्जीक्यूट हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो यूजफुल।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ये वाला पाथ देना है। अल्टरली कि क्या कर रहा है ये अल्टरली। So what will do, it will check कि कितने फोल्डर हैं आपके इस ट्रेन वाले फोल्डर में। ये आपके क्लासेस बनाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो ट्रेन वाले फोल्डर में आपके पास कितने फोल्डर हैं? तो ट्रेन वाले फोल्डर में हमारे पास 10 फोल्डर हैं। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा वो? फोल्डर्स में। ठीक है, तो इसमें जितने भी इस फोल्डर्स के नाम होंगे वो सब इस फोल्डर्स में आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे सारे के सारे। तो अगर आप अपने इसमें देखो तो ये टोमेटो बैक्टीरियल, स्पॉट बैक्टीरियल, बाइट, अर्ली राइट, हेल्दी, ये सब इसमें सारे नाम ऑटोमेटिकली फैच हो गए क्योंकि स्टार लगा है। और सब इसमें इस एरे में सेव हो जाएंगे, फोल्डर नाम का एरे बनेगा आपका। नाउ ये हम क्या कर रहे हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर दो। देन ठीक है, तो ये फ्लैटन लास्ट लेयर को फ्लैट करने के लिए काम आता है। अभी हमने बताया नहीं है कि हमारे कितने लेयर्स, कितने आउटपुट होंगे, कितने क्लासेस होंगे, तो अभी हम बताएंगे उसको लास्ट में। दैट विल बी डन यूजिंग दिस लाइन। तो इस लाइन से हम बता रहे हैं कि कितने कितने डेंस लेयर बनानी है। डेंस लेयर में लास्ट वाले में कितने कनेक्शंस होने चाहिए टोटल। तो हमने अपने जितने भी इसमें कितने नाम आएंगे, इसमें 10 नाम आएंगे। सो ठीक है, 10 नेम्स को हमने फिर उसकी लेंथ निकाली तो 10 आ गया। यानी कि हमें आउटपुट लेयर में 10 आउटपुट चाहिए, यानी कि उसको 10 के 10 आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। डेंस लेयर लास्ट वाले लेयर जो है दैट बी, और उसमें जो लगेगा एक्टिवेशन फंक्शन वो होगा सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एडम भी लगा सकते हैं। नहीं, एडम इज एन ऑप्टिमाइजर, दैट इज नॉट एक्टिवेशन फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स, रेलू, ये सब लगा सकते हैं। ओके, देन वी विल, हमने अब मॉडल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इनपुट लेयर ऐड हो गई इसमें। जितनी जितनी इनपुट्स होंगी वो हमारी जो इंसेप्शन मॉडल में ऑलरेडी इनपुट है उतने के बराबर होगा। आउटपुट लेयर हमारी ये हो गई। आउटपुट लेयर हमारी डेंस लेयर होगी जो 10 क्लासेस को रिप्रेजेंट करेगी, जो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ फोल्डर्स अवेलेबल इन दिस फोल्डर। ठीक है, तो अब हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। मॉडल में इनपुट लेयर जो है, जो हमारे ऑलरेडी इंसेप्शन लेयर की इनपुट है वो हो गई। आउटपुट लेयर हमारी ये हो गई, और बीच में जितनी भी लेयर्स हैं वो हमने ऑटोमेटिकली अपने मॉडल से, इंसेप्शन मॉडल से ले रही है। तो अगर हम इस मॉडल की समरी, और उसका नाम क्या कर दिया हमने, स्मॉल मॉडल। ये कैपिटल मॉडल इज अ फंक्शन, स्मॉल मॉडल इज आवर नेम, जो भी हम देंगे। यहाँ पे हम ABC कुछ भी दे सकते हैं, XYZ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे मॉडल में क्या क्या बना है। तो मॉडल की समरी देख के हमें पता चल जाता है कि उसमें कितनी लेयर्स हैं, कितना। जो मैं तुम्हें पेपर दिया था तो उसके अकॉर्डिंग ही सब चीजें बता रहा हूँ मैं, कैसे कैसे तुम्हें करनी है। सो यू विल जस्ट कॉल दिस मॉडल रूल समरी। टेक, they'll give you all those layers। कितने लेयर्स हैं आपके इस मॉडल में, क्या क्या बना। तो हम बीच की लेयर तो हम ऑलरेडी जो बिल्ट इन लेयर थी वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियल लेयर भी वही है, इनपुट लेयर भी। ठीक है, लास्ट लेयर देखते हैं कि इसने क्या बनाया है, कितनी क्लासेस बनाई है। सो विल सी लास्ट वन, सो इट सेज 10। ठीक है, लास्ट लेयर जो डेंस लेयर है जिसमें 10 आउटपुट्स है। ठीक है, दिस इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इमेजेस इन ट्रेनिंग फोल्डर, द नंबर ऑफ फोल्डर्स इन ट्रेनिंग फोल्डर। 5 होंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 होंगे तो यहाँ 7 आएगा, 10 है तो 10 आ रहा है। देन दिस इज डन। अब इसके बाद अब हम इस मॉडल को कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे
I'll tell you later कि ये क्या होता है. कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ये लॉस के मल्टीपल तरह के आपके कैटेगराइजेशन के फॉर्मूले हैं. ठीक है, ऑप्टिमाइजर हम एडम यूज कर रहे हैं एंड एक्यूरेसी मैट्रिक्स. तो इसका अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यू बताऊंगा, बट अभी हम अपने मॉडल में ये चीजें ऐड कर रहे हैं. वी हैव टू प्रोवाइड दिस. लॉस फंक्शन हमें कौन सा यूज करना है, ऑप्टिमाइजर हमें कौन सा यूज करना है इस मॉडल में, और ये भी अलग अलग होते हैं. एडम होता है, सॉफ्टमैक्स होता है, नहीं सॉफ्टमैक्स नहीं, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजर्स. उनको हम यूज करके अलग अलग एक्यूरेसी ले सकते हैं. तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो यही है, एडम. देन दिस इज अनदर कंसेप्ट. ये जनरली तब यूज होता है जब हमारे पास इमेज डाटा सेट छोटा हो. ठीक है, तो हम इससे नई इमेजेस जनरेट करते हैं. ठीक है, तो नई इमेजेस क्या होंगे कि उसी इमेज को हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, उस इमेज को फ्लिप कर देंगे. ठीक है, तो एक इमेज से हम 10 अलग तरह के इमेजेस बना सकते हैं, उसी इमेज को रोटेट करके, फ्लिप करके, एंगल चेंज करके, जूम इन करके, जूम आउट करके. तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेशन होते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ना, शेयर रेंज, जूम रेंज, 20% उसको जूम इन करके, 20% उसको टिल्ड करके, इस तरह से फ्लिप करके हॉरिजॉन्टल. 3 तरह की इसने टेक्निक लगाई है इमेज को बनाने के लिए. ठीक है, ये हम जनरली विजिबल नहीं होती हमें, जो ये मॉडल अपने पास रख लेता हूँ उन इमेजेस को स्टोर करके. तो रन दिस, जितनी भी हमारे पास इमेजेस थी उससे कहीं ज़्यादा ये डाटा सेट हमारे पास इसके पास अवेलेबल हो जाएगा. नाउ ऐसे उसने हम इसको इमेजेस को थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं. रिसाइज क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दिया था 224, 224. You'll see there. ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा. बस पहले हमारा जो पाथ है हमारा, वी हैव टू गिव दैट पाथ. ठीक है, तो उसने कहा दैट ही फाउंड 200,000 इमेजेस. 10 क्लासेस में मैंने बताया ना, हर क्लास में मेरी हर फोल्डर में 200 इमेजेस हैं. सी ईच एंड एवरी फोल्डर कंटेन्स 200 इमेजेस. इसमें भी 200 इमेजेस हैं. ओके, देखो नीचे आ रहा 200 इमेजेस. ईच विल हैव 200. ये मैंने अलग से सबको कॉपी पेस्ट करके अलग अलग फोल्डर्स में बनाएंगे. सो 200 इमेजेस आर आल्सो देयर. सो ऐसे करके 10 में 200 इमेजेस, 2000 इमेजेस हो गए. इट्स सोर्स. हमने हर इमेज को, बस यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इमेज का टारगेट साइज चेंज किया क्योंकि हमारे मॉडल को चाहिए 224 की इमेजेस. तो हमने सबको कैटेगराइज कर लिया. नोट कैटेगराइज, रिसाइज करके. देन टेस्ट डाटा बना लेते हैं. वैसे हमारे पास टेस्ट डाटा नहीं है, उसकी जगह हम वैलिडेट यूज कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू, हमें वैलिडेशन यूज करना होगा. हमने अपने वैलिडेशन डाटा सेट को भी रिसाइज कर लिया. ठीक है, तो उसमें 500 इमेजेस हैं क्योंकि जो मेरा वैलिडेशन में उसमें मैंने 50-50 इमेजेस रखे हैं. इसमें मेरे 50-50 इमेजेस यहाँ रखे हैं. So you can see 50 is there. Similarly, this is also contain 50. Okay. Now this is most crucial part and that will take the time. अब हम अपने मॉडल को एक्चुअली ट्रेन कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं. जो भी हमने सेटिंग कर दिया, हमने डाटा सेट को भी रिसाइज कर लिया, हमने सारे पैरामीटर्स, सारे ऑप्शंस दे दिए उसको. अब हम उसको ट्रेन करना है. दैट विल टेक टाइम. ठीक है, सो अब हम इसको अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे. ठीक है, इतना ये चलेगा.
So we have given for 10 epochs. 10 epochs का मतलब 10 times that will do the processing on whole data set. Okay, so it will take time. ये 10 बार epochs को रन करेगा. ठीक है, अगर इसी चीज को आप रन करोगे जनरल सीपीयू पे, दैट विल टेक मोर टाइम. अगर मैं इस पे कर रहा हूँ, देखो पहला इपोक शुरू हो गया, 10 में से फर्स्ट इपोक पे वर्क कर रहा है. अभी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा वैलिडेशन एक्यूरेसी, एक्चुअल एक्यूरेसी, एरर, ये सब पैरामीटर्स अभी आएंगे इसमें. ठीक है, जैसे जैसे इपोक बढ़ते जाएंगे एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज होती जाएगी. ये आप कितने इपोक्स भी रन कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर कन्वीनियंस. तो मैं यहाँ पे से स्टॉप करके 2 इपोक्स इफ दैट विल बी डन. What is not stopping it? So I'll run 2 epochs only. I'll run it again. It has been started, if you can see. So in each epoch it will run 63 iteration. इन 63 बैचेस बनाए हैं इसने पूरे इमेजेस के. जो हमारे 2000 इमेजेस थे उसको डिवाइड करके 63 बैचेस इसने बनाए हैं. हर epoch में पहले 63 बैचेस रन करेगा. 2 बैचेस रन हो गए, 3 बैचेस रन हो गए. तो जो इमेज थी पूरी, ठीक है, उसके इसने 63 बैचेस बना दिए क्योंकि इसने कुछ एक्स्ट्रा डाटा जनरेट किया. अभी पहले वो 63 बैचेस पे को रन करेगा एक epoch में. एक epoch का मतलब सारी इमेजेस को एक बार रन कर लेगा, लेकिन सारी इमेजेस के इसने 63 अलग अलग सेक्शन बना दिए. पहले कुछ इमेजेस फर्स्ट बैच में, नेक्स्ट कुछ इमेजेस सेकंड बैच में. सो ईच एंड एवरी बैच को रन करेगा. दीज आर दिस नंबर. और देखो अभी क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है 27 और एक्यूरेसी आ रही है अभी केवल 15%. ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा एक्यूरेसी कम, लॉस कम होता चला जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी. और ये टाइम दिखा रहा है कि 17 मिनट्स लगेंगे इसे फर्स्ट वाला इटरेशन को कंप्लीट करने में, इपोक को. फिर उसके बाद सेकंड इपोक स्टार्ट होगा. सेकंड इपोक विल टेक कम फ्यू टाइम बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार उसको लर्न कर चुका होगा मॉडल. तो देखो यहाँ पे लॉस कम हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई, 21% हो गई 17% से. ओके, इन द मीन टाइम विल सी द नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे. चलिए, ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्यूरेसी आएगी. जैसे इसमें तो इसका डाटा सेट बड़ा था, सो उसने 10 इपोक्स लिए, हर इपोक में उसके बैचेस थे 642. तो देखो पहले स्टार्टिंग वाली जब कंप्लीट हुआ इपोक तो
लॉस 3 और एक्यूरेसी आई 71%, नेक्स्ट इपॉक में 80%, 84%, 86। तो जैसे ऐसे ऐसे जनरल केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये बढ़ती चली जाएगी। ओके, 1 मिनट। Okay, then so in the same way, whenever the number of epochs will increase, you will get accuracy will be increased and your loss will be decreased। ठीक है, लॉस मीन्स मिस प्रोडिक्शन, जो मैंने तो बताया था ना पहले स्टार्टिंग में CNN के टाइम पे, दैट वाई कॉमा वाई माइनस वाई हैट शुड बी लो। तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, फिर उसकी लास्ट वाली उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो गई, 90.23% यहाँ पे 90.18, तो देखो लॉस भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये होता है ओवर फिटिंग, जब हम ज़्यादा ही इपॉक, ज़्यादा ही अगर इसको क्यों 10 लिए, क्यों नहीं इसको 100 ले लिया या 200 ले लिया, क्योंकि जितने ज़्यादा इपॉक्स भी करोगे एक लिमिट से ज़्यादा तो वो हो जाएगा ओवर फिटिंग, फिर आपके मिस होने शुरू हो जाएंगे क्लासिफिकेशन। ओके, देन द सेम डाटा को, जो ये डाटा आ रहा है इसको हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ पे। ठीक है, ये सब वही देखो, लॉस, वैलिडेशन, लॉस, एक्यूरेसी, वैलिडेशन, एक्यूरेसी, ये सब यहीं पे मिलेगा, वैलिडेशन, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, लॉस, वैलिडेशन, लॉस। जब हमने इसको प्रिंट, ये पाइथन का कोड है उसी किसी भी डाटा सेट को प्लॉट करने के लिए। सो इन द सेम वे यू कैन सी दैट एज these are नंबर ऑफ epochs, 0 2 4 0, तो यहाँ पे 1 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे जैसे नीचे वाले ग्राफ में देखो, जैसे जैसे आपके इपॉक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी ट्रेनिंग वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आपके इपॉक बढ़ रहे हैं लॉस जो है वो कम हो रहे हैं। लॉस ज़्यादा से स्टार्ट हुए, यू विल सी फर्स्ट कहाँ था 3.5, तो ये 3.5 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट इपॉक से। ठीक है, और लॉस कम होते होते कहाँ आ गया यहाँ पे, फिर लास्ट वाले इपॉक में थोड़ा सा बढ़ा है, यू विल सी लास्ट वाले इपॉक में 1.6 से 1.8 गया। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से ग्राफ से भी आपको पता चलता है कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है, कि आपकी लॉस कम हो रहा है। ठीक है, दोनों ही लॉस और एक्यूरेसी बढ़ रही है एट दैट। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। बाकी तो फिर उसने दूसरा मॉडल यूज किया, इट इज नॉट नीडेड। यहाँ तक करना है आपको ये चीज। फिर क्या किया उसने कि जो अपना
टेस्ट सेट था, यानी कि हमारा वैलिडेशन सेट था, उसको हमने पहले ये वाली लाइन समझ लो। ये वाली लाइन में क्या कर रहे हैं कि जो हमने मॉडल अभी नया ट्रेंड कर दिया, जिसमें हमने कुछ लेयर्स अपडेट करी है, जैसे लास्ट लेयर अपडेट करी, तो इससे हम उस मॉडल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो उसका नाम सेव किस सेक्शन से होता है, .h5। सो दिस मॉडल, फिर हमें फिर से ये वाली चीज़ करने की जरूरत नहीं, दैट नॉट डू दिस पर्टिकुलर वन। बस आपको नेक्स्ट टाइम ये इंपोर्ट करना है अपना मॉडल, और लोड करना है, और आप अपना सीधा प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फिर इसको लोड करके फिर हमने क्या किया, यहाँ की जगह हमारा क्या है, वैलिड सेट। तो हमने वैलिड सेट को पास किया मॉडल डॉट प्रिडिक्शन करके, तो ये उसको प्रिडिक्ट करेगा मॉडल को कि ये किस क्लास में लाई कर रहा है। ठीक है, कि ये आपका कौन सी इस पर्टिकुलर क्लास में से किस क्लास का डिसीज है। सपोज करो हमने ये इमेज पास करी, ठीक है, तो ये बताएगा ऑटोमेटिकली कि कौन से उसमें लाई कर रहा है। तो ये वाले जो हमारा है ट्रेन में, जैसे ये 10 क्लासेस बनी, तो इसका नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पे जब हमने टेस्ट पूरा डेटा को पास करेंगे, तो वो हमेशा हर एक लीव के लिए एक प्रिडिक्शन देगा कि या तो ये 0 क्लास को फॉल बिलोंग करेगा, या 1 को बिलोंग करेगा, या 2 को बिलोंग करेगा, 3 को बिलोंग करेगा। ठीक है, बट हाउ विल डिसाइड कि कैसे, तो ये देखो सबके वो आ रहा है, सबकी परसेंटेज आ रही है कि फर्स्ट क्लास को के लिए इसकी 90% है, सेकंड प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो उसको अगर हम प्रॉपरली देखें तो ये इस तरह से, क्योंकि इसका 15 क्लास क्लासिफिकेशन था, तो ये 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, दैट मीन मोर, कितनी क्लासेस होंगी, दीज आर मोर क्लासेस। ओके, ये अभी और लंबा भी जाएगा। ठीक है, वाई प्रोडिक्शन को जब हमने प्रिंट किया, ग्रेट। सो हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब लीव्स की प्रोडिक्शन है कि पहला वाला लीव किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, 0 क्लास को, दूसरा लीव 1 क्लास को बिलोंग कर रहा है, तीसरा वाला लीव जो है फिर से 0 क्लास को। तो ये हर एक इनपुट जो है यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का नंबर आ सकता है। जो भी नंबर होगा वो पहली लीव किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, किस क्लास को बिलोंग कर रही है, उसमें क्या डिसीज है वो बता देगा। दूसरी लीव फर्स्ट क्लास को बिलोंग कर रही है, ऐसी जो ये है 3, तो इसका मतलब ये वाली लीव जो भी नंबर पे है, ये लीव
थर्ड क्लास को बिलोंग कर रही है। थर्ड क्लास का मतलब अगर इस तरह से ही बना होगा सीक्वेंस में तो वो लेट ब्राइट इमेज, लेट ब्राइट की डिसीज होगी उस पर्टिकुलर इमेज में। ठीक है, बस ये तक आपको करना है। दैट इज नॉट सच ए बिग टास्क, आपको कोई सेटअप भी नहीं करना, सब कुछ आपके गूगल कोलैब पे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर तुम्हारा डाटा सेट बड़ा है तो हो सकता है कि पूरी रात लग जाए ट्रेन होने में, बट आपको एक्यूरेसी भी अच्छी करनी है। ठीक है, देखो यहाँ 20-27 से घट के क्या आ गई एक्यूरेसी, लॉस जो है 8 पे आ गया, और एक्यूरेसी 13% से बढ़ के 46% हो गई एज नंबर ऑफ इटरेशंस आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जनरली शाम को अगर ये ट्रेनिंग डलते या तो साथ साथ साइड बाय साइड कुछ और काम करते रहे ना, और ये एटलीस्ट देयर शुड बी 5 to 10 epochs, तो दैट विल टेक 2-3 आवर्स। अगर आपका डाटा साइज थोड़ा सा बड़ा है दैट विल टेक 2-3 आवर्स। और मॉडल थोड़ा सा दूसरा दूसरा ले लेना जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स कम हो। ठीक है, ये तो बहुत सारे लेयर्स है, तो इनको अगर आउटपुट पे दिखाओगे, पेपर में दिखाओगे या अपने रिपोर्ट में दिखाओगे, दैट विल टेक 5-6 पेजेस, सो दैट इज नॉट नीडेड। ठीक है, तो VG16 कोई भी छोटा मॉडल ले सकते हो, एलेक्स नेट ले सकते हो, ली नेट ले सकते हो, देख लेना जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स कम। ठीक है, so, इस तरह से तुम्हें यू हैव टू डू पर्टिकुलर टास्क। बाकी इसको देखोगे, सो ही हैज आल्सो एक्सप्लेन इन गुड मैनर। उसने और प्रोजेक्ट्स भी आपको और प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लेन, किसने देखा है इसका ट्यूटोरियल कृष्ण नायक का? एनीवन हु हैव फॉलोड दिस? शाश्वत ने कल एक एनिमेशन भेजा था। ओके, तो शाश्वत ने भी एक कल एनिमेशन भेजा था। दैट वाज आल्सो यूजफुल। ऑफ फ्लो बताता है कैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे, जैसे एक एक छोटा सा किसी ने नेटवर्क बना रखा है। ठीक है, तो इसमें कितने लेयर्स हैं? कन्वोल्यूशन लेयर एक है। ठीक, डाउन सैम्पलिंग का मतलब होता है आपके एक तरह से फिल्टर लगा दिया उस पर, तो एक दो, और डाउन सैम्पलिंग मतलब आपका पुलिंग टाइप का लेयर हो गया कि जिससे आपके साइज से रिड्यूस कर रहे हो। दो कन्वोल्यूशन लेयर है, दो फुली हम पुलिंग लेयर मान लेते हैं, और दो फुल्ली कनेक्टेड लेयर है। ठीक है, तो कैसे कैसे आउटपुट, ये मेरा इनपुट है और यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा फाइनली। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 7। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट सैंपल है। फिर उसने पहला लेयर का जब फिल्टर लगे कन्वोल्यूशन लेयर के, वो उसने अलग अलग फिल्टर ने अलग अलग चीज़ डिटेक्ट करी। ठीक है, फिर वो ले फिल्टर लगे, फिर तो जितने लेयर्स हैं 1-2 उतने लेयर्स होंगे ये लगभग। ठीक है, फाइनली जो हमारा आउटपुट है वो ये है। तो अगर तुम देखो इसको थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे कुछ 0 1 2 3 ऐसे दिखा रहा है, और 7 के नीचे वो दिखा रहा है, यानी कि सारी चीज़ें जो है 7 को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट गैस है वो भी 7 है। ठीक है, और सेकंड गैस ये बता रहा है कि ये 3 भी हो सकता है। तो फर्स्ट गैस इज एक्चुअली अवर फाइनल काइंड ऑफ आउटपुट। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 7, तो 7 आ गया। अगर हम इसको कुछ और ड्रॉ करें, 2 करें, सो विल गेट 2। ठीक है, दिस इज गुड एनिमेशन किसी ने बनाया है जो हमारे कन्वोल्यूशन 2D नेटवर्क 2D ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो विल गो टू अवर फोर इटरेशन और करने से। किसी कोई डाउट है? आप तो कर लोगे प्रोजेक्ट पे? नथिंग टू वरी, गूगल कोलैब में सब कुछ इंटीग्रेटेड है। आपको कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं यूज़ करने, ना ही आपको ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी। दैट विल नॉट टेक मच टाइम। अभी 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 35-40 मिनट्स 45 मिनट्स में मैंने एक डेटा सेट पे सारा काम कर दिया है। यही तुम्हें करना है, थोड़ा सा और अच्छे वे में करना है। फिर उसके थोड़े से थ्योरी लिखनी है कि क्या है वो डाटा सेट को अपने डिस्क्राइब करोगे, गैगल को उसके डिस्क्रिप्शन में जाएगा,
ठीक है, बट कैगल के डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिकॉज दैट विल कम इन प्लैगियरिज्म, तो वहाँ पे आपका प्लैगियरिज्म आ जाएगा। फिर आपको अपने वर्ड में करना है। जैसे मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ अपने डाटा सेट को, दिस डाटा सेट इज टेकन फ्रॉम जहाँ भी जो भी मेजर रिसोर्स है, तो ये प्लांट विलेज डाटा सेट, प्लांट विलेज का एक पोर्टल है जहाँ से डाटा सेट लिया गया है। इट हैज़ दिस नंबर ऑफ, जैसे मैंने अपने डाटा सेट को डिफाइन किया होगा, इतने कॉलम है इसमें, इतने इतने इमेजेस हैं, इतनी क्लासेस हैं, हर क्लास में इतनी इमेजेस हैं। तो यू हैव टू डिफाइन दोस थिंग। डाटा सेट का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। इंट्रोडक्शन करोगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट है, इसका ये क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। ओके, देन उसकी मेथोडोलॉजी, तो आपने क्या क्या मॉडल यूज़ किया, उसकी इमेज लगाओगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है उसको थोड़ा सा बताओगे, फिर बाद में अपने ये रिजल्ट्स लगाओगे। ठीक है, उसके बाद अपने ग्राफ्स लगाओगे, दैट विल बी डन। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। Next report should be started. It's taking time. So it's taking time. So in your case, they'll not take. और अगर आपके पास खुद की मशीन में जीपीयू है, अगर आपके लैपटॉप में जीपीयू है 1 GB 2 GB, देन यू कैन ऑल्सो, अगर तुमने कॉन्फ़िगर कर रखा है अपना पूरा सिस्टम, एनाकोंडा, जुपिटर, ये सब नोटबुक है तुम्हारे पास, प्लेटफॉर्म तुमने डाल रखा है, यू कैन ऑल्सो डू ऑन योर स्टैंड अलोन सिस्टम। ओके, इस तरह से तुम्हें करना है। किसी कोई डाउट तो पूछो। ठीक है, बट यू हैव टू सबमिट बिफोर 10। 10 इज द लास्ट वन, यानी कि 10 को ही बैठोगे करने के लिए। इट विल टेक टाइम, 2-3 दिन लेगा तुम्हारे करने के लिए। ठीक है, अगर तुम थोड़ा पूरा टाइम नहीं दे पा रहे तो दो दैट विल टेक 2-3 days। ये नहीं कि आप उसे 8 को स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, बिकॉज दैट विल कंटेन 100 marks। ठीक है, प्लैगियरिज्म विल आल्सो टेक मेक अ कंट्रीब्यूशन इन योर मार्क। अगर मैंने इसलिए तुम्हें 5 अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, कि अगर पहला अटेम्प्ट जब तुम अपलोड करोगे अपनी फाइल, तो यू विल गेट टू नो कि कितना परसेंट फ्लैग है उसमें। तुम्हें बच्चे को अपने आप को भी फ्लैग दिखेगा, अगर नहीं दिखे तो मुझे बताना। ठीक है, देन इफ यू फाइंड दैट फ्लैग इज मोर देन 15%, 10%, ठीक है, तो फिर से उससे चेंज करो। जहाँ जहाँ तुमने तुमने कॉपी पेस्ट किया, तुम्हें पता होगा ना कहाँ कहाँ पे तुमने उसमें कंटेंट खुद का लिखा है, या कहाँ कहाँ किसी जगह से लिया है। जहाँ कहीं से लेना नहीं है, लोगे तो वो फ्लैग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसको हटाओ, फिर दोबारा अपलोड करो, फिर देखो कि कितना परसेंट फ्लैग आ रहा है। ठीक है, बट डोंट डू दिस प्रैक्टिस कि आप खुद से कुछ चेंज ना करो, फिर से डाल के देखो कितना परसेंट कम हो गया। अरे तुम्हें पता है ना कि तुमने कहाँ कहाँ से कॉपी किया, तो उसको सबको ही चेंज करो। जब जो चेंज करके डालोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लैग नहीं आएगा।
ओके, तो राइट इन योर ओन वर्ड, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी इमेजेस से उससे कवर हो जाएंगी। बट योर रिपोर्ट शुड बी ऑफ 15 पेजेस, 15-20 पेजेस, ठीक है। और हर एक सेक्शन का प्रॉपर टेक्स्ट होना चाहिए। उसमें लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, और रेफरेंसेस भी डालने कम से कम 5 to 10। एनी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? ओके, गुड। सो देखो, दूसरा भी स्टार्ट हो गया और खत्म भी हो गया, क्योंकि पहले वाले में ही आपकी मैक्सिमम ट्रेनिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट में देखो कितनी परसेंट एक्यूरेसी आ गई, 72%। ओके, इफ विल डू द नेक्स्ट स्टेप, तो हमारे ग्राफ भी जनरेट हो जाएगा। एक ही ग्राफ जनरेट कर लेते हैं पहले, दोनों ही कर। यहाँ पे हमें चेंजेस करने होंगे, नो नोट नीडेड। सो यू विल गेट दिस ग्राफ। क्योंकि हमारे दो ही इपॉक थे तो हमें ज़्यादा जिगजैग ग्राफ नहीं आए, जितने ज़्यादा इपॉक होंगे उतना अच्छा ग्राफ आएगा आपका। तो डोंट टेक दिस 2-3 epochs, take at least 10 epochs, so you will get your perfect kind of graph, जैसे ये ग्राफ इसमें आ रहे हैं, ठीक है। So now I am expecting that everyone can do this kind of project. The recording will also be available, ठीक है। यहाँ से ले सकते हो या यहाँ से भी देख सकते हो, यूट्यूब से भी। ये कोड का लिंक मैंने तुम्हें दे दिया है, दिस वन। गिटहब पे उसने अपना कोड डाला हुआ है, दैट हेल्प यू टू यूज द सेम सिंटेक्स। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आपका यही डाटा सेट टमाटो पे, ये किसी भी उस पर काम करेगा। कोई भी डाटा सेट आप यहाँ पे उसका पाथ दे दो, दैल बी डन, वो कर लेगा उस पर, सब चीज़ें वही होंगी। आप मॉडल कोई दूसरा भी दे सकते हो। ट्राई टू फाइंड आउट अ मॉडल विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ, और इसी के ट्यूटोरियल पे आपको दूसरे मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें छोटे मॉडल उसने यूज़ कर रखे हैं। सो यू विल गेट इसमें लेस नंबर ऑफ लेयर्स, so that you can put that summary on your report also। but ये वाली summary नहीं लगानी, इतनी बड़ी summary नहीं लगानी तुम्हें। summary should be of 1 or 1.5 page, उससे बड़ी summary that will not be accepted। otherwise तुम्हारी पूरी report में text summary का ही हो जाएगा, 6 पेज की summary बन जाएगी मॉडल की। that's not needed। okay, so that's it from my side। किसी को पूछना है तो पूछ लेना, बीच में भी कभी पूछना है तो मैसेज कर देना। okay, but start working on the project from today itself। don't wait for 8th October, 9th October। okay, start from today only, तभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। ये कॉपी कर लेना टेक्स्ट अभी से, ठीक है, क्योंकि अभी सेशन बंद हो जाएगा तो ये विल नॉट बी कॉपी टू, दैट विल नॉट बी अवेलेबल। okay, so I'm leaving now as I'm not getting any query। all the best। so send the is today's session helpful for you? Have you learned something, or just you have just done the time pass?
Okay. Harivansh, have you used this Google Colab earlier? Or this is the first time you have seen this? No, sir, I have used it earlier. Okay, good. ठीक है. Start working on that, all of you. And if you face any challenge, let me know. I'll try to resolve that. All the best.